Yes, uncle, start हो गया. जी. So whenever you like me to start, auntie, please just indicate. And बस अंकल मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया. You can start now. all right. जी. वहां भी संगत हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 प्लस जुड़ चुकी है फेसबुक के माध्यम से ना. जी. जय गुरु जी, संगत जी. जय गुरु जी अंकल. Auntie, as you are aware, we have been, discussing so many things about Guruji with Sangat, and occasionally we get so many issues, questions, answers that sometimes we don't know how to address, how to answer. And then I felt we always do satsang, but then if in any way we can help Sangat get the essence of what Guruji Maharaj is all about through the experiences of Sangat like us, then it is important that we share that issue. Auntie, today I will also be speaking a little bit in English because I also have a request from Sangat. There are some who don't understand Hindi, and therefore it will be, if you permit, a little bit of hybrid of Hindi and English, and I hope it's okay. It's okay, uncle. Thank you so much. Auntie, one subject that keeps coming up is this, that we ask Guruji Maharaj, do this, do that. Maharaj, say for example, come into my dreams, bless me, speak to me something, get a message across, and basically solve our problems. And it doesn't seem to be happening. So, and I get so many times these messages also. Why it is not happening to us, what is happening to everybody else? And sometimes I have absolutely no answer, and sometimes I do. And it just not everybody else, it's me included, auntie. We all are facing similar situations where the life doesn't seem to be going the way it should be. And then the satsangs that Sangat shares with everybody else, it seems to me that there are people who advise Sangat to do A, B, C, D, and all will be right. Somebody will say, you have Jal Prasad every day. Someone will say, have Langar. Somebody says, do this X number of times. In fact, interesting, we met one auntie at Mandir who was perhaps telling that this is the 7th visit of hers, and she was told that if you visit Bada Mandir 7 times, then your problem will be solved. And then she says, I will not be coming now because my 7 visits are complete. So, and then you wonder, what is happening? What are we telling our Sangat who are joining us, and how it is being told? Let me start with that little story that we heard during the Shabbat of Bhai Harbans, in which he mentioned that Guru Nanak was going and he was being followed by his Sangat. Along the way, there was a pile of copper, then silver, and then gold, and perhaps diamonds in turn. And every time the pile appeared, Maharaj said, guys, don't follow me. You won't get anything from me.
Why don't you just pick up this precious metal and walk away? And the whole lot, some took up the copper, others took the silver, and a lot many gold, and finally diamonds, and walked away. And when Guru turned around and saw there was only Bhai Lehna ji following him, and Guru inquired, "Why are you following me? See, everybody got something and went away. Why could you not pick up the same thing and make your life so virtuous and great?" And he said to him, "Maharaj, these people had somebody back home waiting for them who wanted them to do something. They had a place to go to. But for me, except you, there is nowhere to go. So where will I go, even if I take these things? Because for me, you are the only one that I know. And other than you, I don't need anything." And that was the time when Baba Nanak Ji Maharaj embraced Lehna Bhai, and as they say, अंग लगा के अंगत बना दिए और खुद उनको ब्लेस करके दूसरे बाबा नानक बना दिए. He made him another Nanak in that classical sense. The message from that was that you have a choice. You can take either Guru or everything else. It is something similar, if you remember, Lord Krishna said the same thing to Arjun. And he said, "Arjun, you have a choice. You can either have me for this war and I will not fight, or you can have my Narayani Sena, all these soldiers and everybody who will be with the best forces in the world, and they will be on your side." And he said, "Maharaj, all I want is you. It doesn't matter if you don't fight, because I want you by my side." And then we have Sangat asking, when will Guruji bless me? When will he give me this? When will he listen to me? When will he solve my problems? And there we are begging Maharaj. So the essence of that understanding was this. And this is why it is important that we listen to the Shabads that are being played, because there is so much value in the Shabad. What should happen when you connect with Guruji, in true sense, is that your desires should disappear. It is one and the same thing. All your desires to be fulfilled, or you get rid of all your desires. Either way, there is no desire left to be fulfilled. And when you are really connected, you have actually no desire left. Because anyone who gets Guru needs nothing else. And then Maharaj used to say, and I'm sure you have heard it so many times, that Guru se mango mat, Guru ko maan lo. And I have always wondered, just like everybody, if we don't beg Guruji Maharaj of what we need, where will we go? Whom will we ask? And then the reply was there in the same very question. Because if you believe in Guru, then you have absolutely no need to ask for anything. What is the difference? It is very simple. And let me explain this in
few sentences. And this is my understanding. And I'm sure everybody will have to understand Guru his own, her own way. But at least you know how I understood. You can ask, Maharaj, please set everything right. This is Mangna. This is begging Guru, requesting him. Please sort out everything, fix things. This is asking. Those who believe in Guru can say the same thing differently. And they will say, my Guru will fix everything. This is your belief. So you can say, Guruji, please fix everything, set everything right. Or you can turn around and say, my Guru will set everything right. So one is Mangna, another is Manna. Fine. But there is this next stage. And there you can say, whatever my Guru does is good for me. Now you are in the second situation, at least you are asking for a particular solution that Guru will fix. But now you're saying, I don't care. I'm in my Guru's control, and whatever he does is for my good, or whatever he does not do is for my good. And I don't care. As long as Guru is in control, I'm fine. This is surrender, where you have stopped telling Guru what your problem is and what the solution should be. And that is the difference. So the ones who connect, and strangely, you beg when you have no connection, and when you get the Guru, and you actually can ask whatever you want. And remember that Shabad, Jo mange Thakur apne se, soi soi deve. Apna Thakur, when Guru becomes your own, then whatever you ask will be given to you, because now you are Guru's Bhagat. But at that stage, you have no desire to ask. And this is the beauty. As long as you have no ability, you keep asking. And the day you have this connection, there's no need to ask. There's no desire to ask. And because you have Guru. So whenever people say, I have done this, I have, and there is a Sangat who keeps saying, I take Guru as my father, I call him Papa, I take Guru as my brother, I call him Bhai, my Guru is my Lord, my Guru is this, my Guru is that. But why is he not giving me what I want? The fact that you're asking means you're not connected. Because those who are connected, they stop asking. There's no need to ask. And that is the thing. So the day you have this feeling that there is no need to ask, that is the day you have connected. And as one who is connected doesn't need to ask. Why Guru does what he does? For this, you have to understand the essence of Shiva. Let me share what I understand about Shiva. Shiva's element is defined by A, he will take your problems on himself. No other God, no other deity, no other Dev will do that. Only Shiva. And this is why, if you remember, when Samudra Manthan took place and the poison came out, there was nobody around to take that. Everybody lined up for Amrit, all the gods, all Devtas, everybody lined up for Amrit. But
No one was volunteering to have the poison, but in the larger interest of his people, his devotees, Shiva took it. That is one element, and that element was visible in Guruji Maharaj in full glory, that when his Sangat is in trouble, he will take care of that Sangat. He never waits for you to ask for Sangat. You don't have to ask your Guru. So now I switch back to Hindi again. And in between I'll keep speaking English because फिर से रिपीट करता हूं, जो गुरुजी से कनेक्टेड है उनको गुरु से मांगना नहीं पड़ता, और जो गुरु से कनेक्टेड नहीं है वो चाहे कितना भी मांगते रहे, तो आपको चॉइस है। आप गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो जाओ और मांगने की जरूरत से बाहर आ जाओ, या गुरुजी महाराज से कनेक्टेड नहीं रहो और मांगते रहो। तो जो कनेक्टेड नहीं है, जब वो मांगते हैं तो वो किस तरह की चीजों में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है गुरु देखा नहीं जाएगा, लेकिन चलो गुरु का स्वरूप मिल गया, अभी स्वरूप को पानी में डाल के पी लो, मंदिर के 7 चक्कर लगा लो, किसी ने बोल दिया मंदिर में 10 बार मत्था टेक दो तो ये हो जाएगा। अब उन्हें गुरु से कुछ लेना देना नहीं, उनको किसी ने प्रोसेस समझा दी, ये कर दो तो ये हो जाएगा। अब इस कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में गुरु तो कहीं नहीं है। अब आप पूरा का पूरा टाइम आप अपनी इस प्रोसेस पे रिलाई कर रहे हैं कि मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा, और शायद हो भी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर उसमें गुरु कहीं नहीं है। इसीलिए तो गुरुजी ने फास्ट रखने से मना किया था कि ऐसा देवता जो आपको कष्ट देके खुश होता हो, किस काम का? गुरु आपको तकलीफ में नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु तो मां है। इसलिए आपको वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कनेक्ट होना है। अब सवाल यही तो रह गया था ना कि कनेक्ट कैसे हो जाए, वो काम आपका है ही नहीं। शिवजी महाराज से, शिव पुराण में एक जगह मैंने पढ़ा, शिवजी महाराज से पूछा कि महाराज हम सब तो आपका ध्यान लगाते हैं जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, और आप जो ये आंख बंद करके बैठते हो और आप सालों साल निकाल देते हो समाधि में, आप किसका ध्यान लगाते हो? तो शिव जी ने कहा मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। इमेजिन, आप गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु की साधना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, और आपके गुरु आपका ध्यान करते हैं, आपकी साधना करते हैं। जितना आप गुरु से कनेक्टेड हैं उतने गुरु आपसे। तो ऐसे गुरु को जो हर समय आपके बारे में ही सोच रहा है, क्या आपको कुछ याद दिलाने की जरूरत रहेगी? और अगर है तो फिर गुरु से कनेक्शन नहीं है। और ये बाकी सारी चीजें जो आपको गुरु की याद दिलाती हैं, वो केवल याद दिलाती हैं, जो आपको गुरु की याद दिलाती है, वो केवल याद दिलाती है, जो आपको गुरु की याद दिलाती है, वो केवल याद दिलाती है। मैं एक एक्सपीरियंस बहुत बार बोलता हूं, और उसको मैं जितनी बार बोल दूं उतनी बार भी कम होता है, और ये मैंने सिंगला अंकल से सुना था और देखा भी था। वो एक जमाने में महाराज के स्वरूप हम लोग अपनी शर्ट पे आईडी कार्ड की तरह से लगाया करते थे, क्लिप की तरह, क्लिप के साथ, और गुरुजी उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे।
तो अंकल चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, गुरुजी ने उन्हें बुला के कहा कि ये जो, क्योंकि दूसरे स्वरूप शायद खत्म हो गए होंगे, गुरुजी ने अंकल से कहा कि ये जो तुम लगा के घूम रहे हो मुझे दे दो, मुझे किसी संगत को देना। तो सिंगला अंकल ने भोलेपन से कहा कि गुरुजी मेरे पास तो एक यही है। और गुरुजी ने कहा कि तुझे इस फोटो की लोड नहीं है, क्योंकि तेरे पास मैं हूं। अब सवाल यह कि जिसके पास गुरु है उसको स्वरूप की जरूरत नहीं है। ये उस तरह की बात हो गई जैसे हम अगर शुरू की क्लास में हो तो ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, लेकिन ए एप्पल थोड़ा ही है। ए इज नॉट एप्पल, बट वी आर टॉट दैट वे, ए फॉर एप्पल। एप्पल इज टेम्परेरीली अटैच्ड टू ए। एप्पल को ए के साथ में टेम्परेरी तरीके से जोड़ा गया है, ताकि जिनको ए समझ में नहीं आ रहा वो कम से कम एप्पल से ए समझ लें। ये भी सच है कि एप्पल में ए है, लेकिन एप्पल ए नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों को गुरु से कनेक्ट करने की प्रोसेस में गुरु के स्वरूप का, गुरु के मंदिर का, गुरु के मंत्र जाप का, गुरु के लंगर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये अनइमेजिनेबल ब्लेसिंग है। मगर गुरु तो गुरु है, ही इज बियॉन्ड। बाकी सब टेम्परेरी है, हम भी टेम्परेरी है। लेकिन जो चीज समझने की है वो ये है कि जिस फॉर्म में गुरु हमारे पास आए, हमें दर्शन दिए, वो फॉर्म भी टेम्परेरी थी, वो फॉर्म आज नहीं है। लेकिन दैट फॉर्म वाज वन smallest of the small part of the overall persona and existence of Maharaj. लेकिन हमें अपने से जोड़ने के लिए वो फॉर्म भी जरूरी थी, हर चीज जरूरी थी। लेकिन वो शिव एलिमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, और उनको एक छोटे से टेम्पररी फॉर्म में अपने से जोड़ के आप केवल टेम्पररी सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि ब्रह्मा जी जब शिव जी की प्रेयर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, महाराज आप इतने विशाल हो कि आपको खुद नहीं पता आप कितने विशाल हो। You yourself do not know. इसीलिए तो वो होता है कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। इस अंत न पाया की स्टोरी मैंने पढ़ी थी एक बार, कि शिवजी ने जब ब्रह्मा और विष्णु में ये झगड़ा हुआ कि उन दोनों में बड़ा कौन है, तो उन्होंने खाली बोला कि मेरा जो छोर देख के आ जाओ और मुझे बताओ जो पहले लौट के आ जाएगा मेरे एंड को टच करके, वो बड़ा माना जाएगा। स्टोरी थोड़ी लंबी है, बट फैक्ट ये है कि विष्णु जी तो खूब तक जाके आ गए और वापस आके हाथ जोड़ के बोले, महाराज
मुझे तो मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने आके थोड़ा झूठ बोला और अपने साथ एक गवाह भी ले आए। तो उस चक्कर में स्टोरी ये है कि ब्रह्मा जी को अपना एक सिर खोना पड़ा और सजा मिली, और फिर ब्रह्मा जी को उपासना का अधिकार भी उनसे ले लिया गया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। तो बाद में हाथ पैर जोड़ के एक जगह मिल गई, तो पुष्कर में उनका मंदिर है। लेकिन कमिंग बैक टू द स्टोरी, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, ये शब्द ऐसे ही थोड़ा ही है। ये शब्द सुन के ये समझ लें, तो जिसका अंत नहीं पाया उसको आप एक स्वरूप से कन्फाइन कर दें, एक प्रोसेस से कन्फाइन कर दें, एक तरह की एग्जिस्टेंस से जोड़ के रखें, तो ये अपने आप को लिमिट करना हो गया। क्योंकि हम लोगों का हमारा एक फॉर्म है जो टेम्पररी है, जिसमें हम आज दिखते हैं, लेकिन हमारा एक फॉर्म परमानेंट है। ये वो फॉर्म है जिसमें अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा मैं नहीं होगा। तो there will never be a time when Guruji will not be there and we will not be there. This is the permanent connect. तो प्लीज संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर ये पॉसिबल है तो जो आपको गुरु से चाहिए वो मान लीजिए कि आपको मिलेगा, और वो फिर मिलेगा। वो आपको अच्छे के लिए मिलेगा, बुरे के लिए मिलेगा, ये आप जानो, क्योंकि मांग आप रहे हो। यहां पे मुझे अपना एक छोटा सत्संग फिर से शेयर करना है कि ये उस जमाने की बात है, 2003 कि मुझे एक अमेरिकन कंपनी का इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का इंटरव्यू हुआ। उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, मुझे जॉब ऑफर कर दिया, और फिर वो जॉब कोई और ले गया। 8-9 महीने के बाद में पता चला वो जॉब उसे भी नहीं मिला। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और मैंने फिर हाँ कर दी। इस बार भी वो जॉब कोई और ले गया। तो अब हम 2005 में आ गए थे और वो भी चले गए, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया। मैंने महाराज से इस बार सोचा कि मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर लेता हूं कि महाराज ये क्या हो रहा है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन महाराज 2 साल हो गए, अटक गए इसमें। तो अब गुरुजी से आप कैसे बोल सकते हो? मेरी हिम्मत तो गुरुजी के सामने खड़े होने की थी नहीं। तो टिपिकली सिंगल अंकल के पास गए। अंकल मंदिर के सेवादार थे उस समय में, और मैंने उनसे कहा कि अंकल गुरुजी से इस तरीके से पूछना है। सो वी हैड दिस लिटिल कोरियोग्राफी कि आप किधर से अप्रोच करोगे, कहाँ खड़े हो जाओगे, मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, और मैं इशारा कर दूंगा जब गुरुजी सुनने के मूड में होंगे तो आप आ जाना। आज बड़ा आसान लगता है कि चलो गुरुजी से कुछ मांग लो, लेकिन महाराज के सामने हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं सिंगल अंकल ने देखा गुरुजी किचन के सामने वह साथ वाली कैबिनेट पे बैठे थे। उन्होंने देखा अच्छे मूड में है, मुझे इशारा किया, मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। अंकल ने खुद ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कमांडर को ये जॉब चाहिए। जॉब के बारे में कुछ नहीं बताया। गुरुजी ने आंखें बंद की, 10 सेकंड लगाए होंगे, आंखें खोल के कहते, तेनू जॉब की कोई लोड नहीं है, तू मेरे को आ जा। 2 sentences एंड द मैटर क्लोज्ड। मैंने क्या करना चाहिए था? हाथ जोड़ के मत्था टेक के वहां से रिट्रीट कर लेना चाहिए था।
लेकिन मुझे वो सोल्यूशन महाराज का एक्सेप्टेबल नहीं था। मुझे जॉब चाहिए था, तो मैं वहां से नहीं हटा। बट केप्ट क्वाइट। सिंगला अंकल then pleaded with him कि अंकल, कमांडर को पैसे की जरूरत है, कुछ कुछ समथिंग टू दैट इफेक्ट ही सेड। एंड देन गुरुजी again closed his eyes for a few seconds and then looked at me and said, जा कमा ले पैसे। This was Saturday. फॉर ए मोमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग कमा ले पैसे थोड़ा ही होती है। महाराज ने बोलना था कल्याण कर दिया, ऐश कर, वगैरह वगैरह। Like I got a message of one auntie says, गुरुजी मेरे को क्यों नहीं कहते ऐश कर? So नहीं बोला उन्होंने, because I asked for something he did not want me to have. That was not good for me. उन्होंने जब कहा कमा ले पैसे, तो ये सैटरडे की बात थी। मंडे को सुबह ऑफिस खुलते ही मेरे पास उस कंपनी के एक अमेरिकन बॉस थे, उनका फोन आ गया कि कमांडर व्हेन कैन यू ज्वाइन? एंड आई वेंट देयर and picked up the appointment letter. जब मुझे जॉब मिला, उसके बाद में अगले सैटरडे को महाराज के पास आया, लेकिन उससे पहले महाराज ने जो संगत उनके पास बैठी थी शाम को, उसी दिन उनको बोला कि मैंने कमांडर की जॉब लगवा दी है। एंड देन ही सेड द अमाउंट, इतने रुपए की लगवा दी है। और फिर ये भी बोला कि मैंने कमांडर को 4 साल दिए हैं, विच आई अंडरस्टूड कि गुरुजी ने मुझे 4 साल के लिए जॉब दी है। लेकिन ये भी समझ में आ गया था कि मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैंने जबरदस्ती मांग लिया, इसलिए गुरुजी ने कहा जा कमा ले पैसे। चार साल तो निकल गए। 4 साल के बाद में उस जॉब में जिस तरीके की गंध मची, मैं सोचता था कि इससे अच्छा तो मैं ये जॉब नहीं लेता। बेटी का इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था, इसलिए आंटी ने, तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, क्योंकि 2005 में मिली थी अक्टूबर में, और ये 2010 की बात है। आंटी ने गुरु से कहा महाराज बेटी की इंजीनियरिंग पूरी हो जाने दो, फिर ये तब तक के लिए जॉब इसके अंकल को दे दो, अदरवाइज उसके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। गुरुजी ने फिर मान लिया। 10 मई को उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई और 14 मई को ये जॉब चली गई। लेकिन 15 दिन के बाद अपने आप से, बिना मांगे हुए, मुझे एक दूसरी अमेरिकन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई, और वो भी बुला के दे दिया, और उससे कहीं ज्यादा पैसों में दे दिया। उस दिन ये बात समझ में आ गई, अगर मैं गुरु से ना मांगता तो हो सकता है महाराज ने मेरे लिए कुछ ढंग की चीज प्लान करी होती, जो मुझे वापस मिलने में 4 साल लग गए, 5, केवल इसलिए कि मैंने मांग लिया। तो जो मांगने वाला कॉन्सेप्ट है, मेरा उस दिन क्लियर हो गया।
उसके बाद में मन में कितना भी प्रेशर हो और कितनी भी दिक्कतें हो, मैं इस विश्वास के साथ में कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मैं गुरु की संगत हूं, ये मैंने मान लिया। मैंने गुरु से ये नहीं बोला गुरु जी मुझे अपनी संगत में शामिल कर लो, मान लिया मैंने कि गुरु मेरे हैं, मैंने मान लिया कि मैं गुरु की संगत हूं, मैंने मान लिया कि मेरा गुरु मुझे बहुत प्यार करता है। इसलिए फिर कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो मांग लूंगा वो गुरु दे देगा और फिर मैं रिग्रेट करूंगा। लेकिन उसके बाद में कभी भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको क्या चाहिए उसकी टेंशन महाराज को आपसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा ना, शिव स्वरूप, उनका जो शिव एलिमेंट है वो हर समय अपनी संगत का ध्यान करता है। हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु हमारा ध्यान करते हैं। और अगर गुरु आपका ध्यान करते हैं तो वो आपको इस स्थिति में नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको मांगना पड़े। फिर एक मैसेज मेरे पास आया आंटी कि अगर हम गुरु की संगत में हैं तो हम तकलीफ में क्यों हैं? क्या सवाल है? आपको अंदाजा है गुरु कितनी तकलीफ में रहते थे? कभी कर्नल जोशी अंकल का सत्संग सुना, जो गुरु की सेवा में रहते थे, दिन रात रहते थे, कि जब सारी संगत अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां महाराज पे छोड़ के चली जाती थी तो उनको एक्सट्रीम डिफिकल्टी और पेन के अंदर सारी रात निकल जाती थी। फिर वो सफर करते, बहुत बार ब्लड वॉमिट करते, लेकिन सारा का सारा सफरिंग संगत का अपने ऊपर लेके निकाल के अगले दिन फिर से तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाते। एक आंटी ने जो काफी रिनाउंड भगत हैं गुरु की, उनसे एक दिन पूछा कि महाराज आप इतनी तकलीफ में रहते हैं, आप संगत की परेशानियां, बीमारियां अपने ऊपर क्यों लेते हैं? तो गुरुजी ने काउंटर क्वेश्चन पूछा उनसे कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो आपका क्या काम है? तो बोले कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके जो रहने वाले हैं उनकी समस्याएं सुनती हूं और उनका समाधान करती हूं। तो गुरुजी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। एंड देन गुरुजी रिप्लाइड, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। दिस इज व्हाट लॉर्ड शिवा डज। शिवजी महाराज अगर ये नहीं करेंगे, अगर वो संगत के हिस्से का जहर नहीं पिएंगे तो फिर कौन पिएगा? और फिर ब्रिगेडियर सैनी अंकल का सत्संग जो आज महाराज के चरणों में है, संगत का गोल्ड स्टैंडर्ड। जब महाराज के पास आए, उनका काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, मैं तो खाली सेंस बता रहा हूं। उनको लिम्फ नोड का कैंसर हुआ, गुरुजी के पास है, पहले से जानते थे, महाराज के भगत थे। लेकिन पहली चीज उन्होंने महाराज से क्या कही? उन्होंने कहा गुरुजी आप इसे ठीक कर दें,
मगर आप इसको अपने ऊपर लेके ठीक नहीं करेंगे। मैं इसको सहन करने के लिए तैयार हूं। हियर इज ए डिवोटी, एक भगत है जो जो अपनी तकलीफ को अपने गुरु को सफर करने के लिए हैंडओवर नहीं करना चाहते। ये गुरु के लिए उनका प्यार। तो देखो, जो गुरु को उन्होंने कहा, गुरुजी ने मान लिया, बट आप सोचो गुरुजी कितने अंदर से प्यार उमड़ा होगा जब उनका भगत उन्हें कह रहे हैं कि महाराज आप इसे ठीक करो, मत करो, मगर अपने ऊपर लेके ठीक मत करना। He never got fully cured, but he led a wonderful and long life, irrespective of the problem. वो तकलीफ में तो रहे, ठीक भी नहीं हुए, लेकिन बीमार भी नहीं हुए। महाराज ने उनको संभाल के रखा। तो आज जब आप तकलीफ में हैं और आप चाहते हो तकलीफ नहीं हो, तो आप गुरु से ये जान के मांगिए कि ये तकलीफ अब गुरु के हिस्से में आएगी। तो जो गुरु के सच्चे भगत हैं वो क्या बोलेंगे? मेरा गुरु सफर नहीं करे, मेरा गुरु तकलीफ में नहीं हो, महाराज मैं आपके चरणों में रह के इस परेशानी को काट लूंगा, मगर आप अपने ऊपर मत लेना। लेकिन जो संगत नहीं है, जो गुरु से केवल इसलिए जुड़े हैं कि कुछ मिल जाए बस, और कैसे पता चला, इसकी सुन के उसकी सुन के यहां से वहां से सुन के पहुंच गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई कह दे कि गुरु साहब अपने ऊपर ले लेते, महाराज ये भी ले लो। तो ये चॉइस आपकी है कि आप गुरु के भगत हैं तो फिर कैसे हैं? क्योंकि गुरु तो वही कर देंगे जो आप उन्हें कहोगे। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई। अब बात आई प्रोसेस की। आपके और गुरु के बीच की सेटिंग है, वो आपने डिसाइड करनी होती है। मेरी आंटी ने जब कार चलानी सीखी तो हमेशा गुरु से कहती थी, गुरु जी मेरे साथ चलो। तो वो ड्राइव करने जाती थी कहीं भी काम से, तो गुरु जी को साथ ले जाती थी। अब मैं इस सेंटेंस का फर्क बताऊंगा आपको। एक दिन और फिर कहती थी, गुरु जी वापस आके दोनों चाय पियेंगे। सो वापस आ जाती तो 2 कप चाय बनाती, एक महाराज के सामने रखती, एक अपने सामने, और फिर दोनों पी जाती। एक दिन साथ चलो गुरुजी कहना भूल गई। इसका मतलब क्या हुआ? बिना गुरुजी को साथ लिए चली गई। और उस दिन जैसे ही वो टी पॉइंट से मेन रोड ज्वाइन कर रही थी, सामने से 140 की रफ्तार से वो कार एक साइड से उसके ऊपर आई, और जितनी जगह थी उतनी जगह में वो कार निकल नहीं सकती थी बिना भिड़े हुए। सो बेटी साथ में थी, दोनों के मुंह से एक ही चीज निकली, गुरुजी। और कार निकल गई। कैसे निकली पता नहीं, मगर भिड़े नहीं। आंटी ने आंख बंद कर ली, हो गया काम। फिर एक दूसरी कार आई, उसके पीछे गुरुजी लिखा था। अपने आप से आंटी का क्लच से पैर हट गया और कार पीछे चलने लगी। वो कार आंटी को सीधे जलवायु टावर्स के अंदर उसकी बिल्डिंग के सामने छोड़ के गायब हो गई। ऊपर आके सॉरी बोला, लेकिन
अगर आंटी ने ये नहीं बोलता था गुरुजी मेरे साथ चलो, और वो ये भी बोल सकती थी गुरुजी मेरे साथ हैं। चलो का मतलब है साथ में नहीं है, जब तक कहेंगे नहीं तब तक नहीं चलेंगे, तो जब तक आप कहोगे नहीं तो चलेंगे नहीं। ये डिसीजन आपका है। मैंने आंटी से वो बोला कि आप ये कौन सी सेटिंग है, महाराज साथ चलो, यानी आप ना बोलो तो नहीं चलेंगे, तो वेट करते रहेंगे, भाई इसने बोला ही नहीं मुझे साथ चलने को। और आप यही कहते थे मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ है, तो फिर गुरु हमेशा साथ है। साथ चलो वाली बात कहाँ आ गई? इसी तरीके से अगर गुरु आपके दिल में है तो दिल में है। और हाँ, उससे मुझे एक बात याद आई, मैं सोचता था कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं संगत से शेयर करूंगा। जब हम गुरु से जुड़ी चीजों की इंपॉर्टेंस के ऊपर इतना ध्यान देते हैं ना, तब मुझे वो एक छोटी सी स्टोरी याद आती है रामायण की, जिसमें जब रामचंद्र जी वापस आ गए अयोध्या, राजा बन गए, तब हनुमान जी को उन्होंने प्रसाद के तरीके से अपने गले की माला उतार के दी। आप सोचो हनुमान जी के लिए उनके प्रभु राम की माला कितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन हनुमान जी ने वो माला तोड़ तोड़ के फेंक दी। तो उससे इनके जो लक्ष्मण है उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि देखो इतने प्यार से अपने भक्त को माला थी उसने तोड़ दी। तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी आपने क्या किया? तो बोले मैं तोड़ के देख रहा था इसमें राम कहाँ है, मेरे प्रभु इस माला के अंदर है कि नहीं है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा, तो क्या तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं? तो हनुमान जी कहा हाँ रहते हैं। और तब उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया कि देखो अंदर है। ये स्टोरी है। तो हनुमान जी को, क्योंकि वो उनके दिल में है भगवान, तो उन्हें उस माला का महत्व समझ में नहीं आया। माला उसके लिए जरूरी है जिसके मन में अभी तक गुरु बैठे नहीं आके, और अगर बैठ गए तो फिर हनुमान जी की तरह माला तोड़ दी। माला बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक हैविंग गुरु इन योर हार्ट। ये जो आंटी की सत्संग मैंने आपको बताया, मैंने इसलिए बताया कि आपने एक प्रोसेस सेट कर दी कि मैं जाऊंगी गुरुजी साथ चलेंगे, मैं कहूंगी तो साथ चलेंगे, अब नहीं कहूंगी तो नहीं चलेंगे। गलती आपकी प्रोसेस की है। और इसको आप इसमें आप कुछ भी जोड़ लो कि मैं जब तक मैं इतनी बार लंगर नहीं करूंगा, इतनी बार सत्संग नहीं करूंगा, तब तो फिर गुरु वेट करते रहेंगे आपकी कि आप कब ये प्रोसेस पूरी करो और ढंग से करो और बिना गलती के करो, तो मैं कब ब्लेस करूं। और आप भोले भाव से आप सुदामा भी बन सकते हो, आप उनके लिए चिवड़ा ला के दे सकते हो, 3 मुट्ठी में आपको त्रिलोकी का राज थमा दे। आप भाई लैना जी बन सकते हो, तो बिना किसी उसके प्यार से महाराज से जुड़ के आपको वो खुद करतार बना दे, खुद ईश्वर बना दे, खुद निरंकार बना दे। आप क्या मानते हो? और इसीलिए सारी बात मानने की, आप मानते ही नहीं। आप मानोगे ही नहीं कि मुझे गुरु से मांगना नहीं है, तो फिर मांगना तो पड़ेगा। तो मुझे मेरा लेसन मिल गया, आप सबको मिलेगा। तो वो तकलीफ वाली बात पे वापस आता हूं। तकलीफ सबको है, मुझे भी है, और खूब सारी है, हर एक को है। ये जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारे कर्म काटने की प्रोसेस है। लेकिन शायद हमें उतनी तकलीफ से बहुत कम तकलीफ है जितनी कि हम डिजर्व करते हैं। आपको अंदाजा नहीं है आपकी कितनी तकलीफ महाराज ने अपने ऊपर ले ली, और आपसे बची कुची सहन नहीं हो रही। लेकिन सफरिंग जो है ना, ये प्योरिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे भागना नहीं चाहिए, बस
ये भाव अगर है कि while I am going through this suffering, my guru is with me, मैं अकेला नहीं हूं, he is watching. और हाँ, इससे मुझे एक रियल लाइफ स्टोरी याद आई, मैं उसे और थोड़ा बताता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो गया उनके लाइफ के आखिरी समय में। तो उनके शिष्यों को पता था कि वो माता का दर्शन किए बिना भोजन भी नहीं करते और साक्षात दर्शन करते थे। तो एक भक्त ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप तो माता से रोज मिलते हैं और वो आपका कहा कभी नहीं टालेंगी, तो आप उनसे कह क्यों नहीं देते कि मुझे ठीक कर दो? क्योंकि ये शब्द जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, उन पे भी लागू होता। यू नो व्हाट ही सेड? उन्होंने कहा वो मेरी माँ है, मुझे रोज देखती है और वो चाहे तो मुझे अभी ठीक कर सकती है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मेरे लिए क्या ठीक है। अगर मेरी माँ चाहती है कि मैं इससे गुजरूं और तकलीफ झेलूं, तो मैं ऐसे ही ठीक है। I will willingly accept this suffering simply because my mother is watching and she will not let me go through unless it is for my own good. और उन्होंने मांगा नहीं। इसलिए कहना मुश्किल है, समझना और भी मुश्किल है, और ये मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए। लेकिन अगेंस्ट ऑल टेम्पटेशंस, कितना भी मन में लालच जाए कि गुरु से मांग लो, मैं यही कहूंगा कि गुरु को मानने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि गुरु को मानने में गुरु मिलता है, गुरु से मांगने में वही मिलता है जो आप मांगते हो। सो कमिंग बैक टू दी प्रोसेस, ये आपके ऊपर है कि आप प्रोसेस से गुरु तक पहुंचना चाहते हो या बिना प्रोसेस के। ही विल एक्सेप्ट whatever you decide. हाँ, और मुझे खूब सारे एक्सपीरियंस जब सुनते रहते तो याद आते रहते। मुझे याद है पुष्कर अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे, तो जो गुरु से जुड़े, तो आंटी जब गुरु जी के पास गई, तो तब गई जब वो सर्जरी के लिए जा रही थी, और उन्होंने कहा गुरु जी मुझे दवाई से ठीक कर दो, और गुरु जी ने उनकी सर्जरी रुकवा दी, वो दवाई से ठीक हो गई। लेकिन उसी प्रॉब्लम की एक दूसरी आंटी का सत्संग उन्होंने सुना, तो वो गुरुजी ने बिना दवाई के ठीक कर दी। तो आंटी के दिमाग में ये सवाल आया कि अगर वो बिना दवाई के ठीक हो सकती थी, तो मुझे दवाई के चक्कर में क्यों डाला? तो अंकल ने उन्हें समझा दिया कि तूने ही तो बोला था गुरुजी मुझे सर्जरी नहीं करानी, मुझे दवाई से ठीक कर दो। आप कहते मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, तो ऐसे ही ठीक कर देते। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। और क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको मांगना क्या है, आपको पता ही नहीं मांगा कैसे जाता है, आपको मांगने की प्रोसेस नहीं पता, तो इस चक्कर में क्यों पड़ना? लेट गुरु डिसाइड। ही इज द बेस्ट जज। वो हमारे आगे पीछे का हिसाब किताब जानते हैं, हम कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। तो जहां तक एक चीज मुझे और कहनी है, एक्सपीरियंसेस तो हैं, और ये सत्संग
और जो भी हम समझते समझते हैं, जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी का अंत नहीं जान पाए और हम ये शब्द सुनते सुनते कानों में रम गया है कि अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तो हम गुरु को समझने की कोशिश क्यों करते हैं? हम गुरु को जानने की कोशिश क्यों करते हैं? जानने और मानने में भी यही फर्क है। तो संगत जी, आंख पे पट्टी बांध के या अंधों को एक हाथी के पास खड़ा कर दिया, ये मैंने कहीं स्टोरी सुनी थी तो शेयर कर रहा हूं। तो उनसे पूछा, बताओ हाथी कैसा है? तो जिसने सूंड पकड़ी उसने उसका एक तरह का डिस्क्रिप्शन दिया, जिसने उसके पैर पकड़ लिए, क्योंकि पूरा हाथी तो किसी के पल्ले पड़ना नहीं था, उन्होंने उसको दूसरी तरह से बताया। जिसने हाथी के कान पकड़े उसे वो सूप जैसा लगा, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसे वो अलग तरीके का लगा, लेकिन सब अपने अपने तरीके से सही थे, बट इनकम्प्लीट। गुरु का अंत नहीं किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं मिला, पर आपको जानने की जरूरत नहीं है। कोई कोई खाना भी स्वाद लगे खाने के लिए, आपको उसकी रेसिपी और बनाने की विधि भी जानना जरूरी नहीं है। आप तो बस गुरु को मान लो, और मानने में भी ज्यादा अंग्रेजी नहीं है, अपना मान लो, ओन हिम, दोनों हाथों से पकड़ के आप मेरे हो। गुरु को ऑप्शन मत दो कि गुरु जी आप मेरे हो जाओ, और गुरु जी का मन करा नहीं होता तो आप उनको ऑप्शन नहीं दो ये कि वो डिसाइड करें कि गुरु जी आप उनको खाली अपना बना लो, और ये प्यार से संभव है, प्रोसेस से नहीं। एंड फाइनली, ये मुझे खूब सारी बात इस तरह के मैसेजेस भी आ जाते हैं आंटी आजकल, कि फलाने अंकल ने ये बताया, फलाने अंकल ने ये बताया। अंकल और दो अंकल लोगों ने अलग अलग बातें बता दी, तो पूछ रहे थे इनमें से कौन सी सही है। देखो, मैं क्या बोलूं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, तो मैं जो बोलूंगा, पर मैं आपको यही बोलता हूं कि आप अगर गुरु से डायरेक्ट जुड़ोगे और किसी के थ्रू नहीं जुड़ोगे, तो आपको गुरु का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप किसी के थ्रू जुड़ोगे, तो जो वो बताएगा आपको केवल वही पता चलेगा। वो सच तो हो सकता है, लेकिन अगर उसने हाथी की सूंड पकड़ी है तो वो सूंड जैसा बताएगा, और हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी जैसा पैर जैसा बताएगा, और पूंछ पकड़ी तो पूंछ जैसा, और कान पकड़ा तो कान जैसा। गलत नहीं है, पर इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। तो आप सुनो सबकी, लेकिन अल्टीमेटली पूरे के पूरे हाथी को देखो, महसूस करो, पूरे महाराज को एक्सपीरियंस करो, अपना अपना बना के उनसे डायरेक्ट जुड़ के, वन टू वन जुड़ के। किसी की मत सुनो, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सोचो कि गुरु हमारी जिंदगी का, गुरु हमारी एग्जिस्टेंस का इंजन है, और हम बोगी हैं, और गुरु हमें खींचने को तैयार है। आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट इंजन से जुड़ जाओ, तो आपको इंजन से कनेक्शन रहेगा और आपको इंजन का पता भी चलता रहेगा। लेकिन आप किसी बोगी के पीछे लग जाओगे, तो आपको उस बोगी से पूछना पड़ेगा कि इंजन कैसा है। और कई बार तो अगर आप 5-6 बोगी के पीछे जुड़ गए, तो जब तक आपके पास खबर पहुंचेगी कि इंजन कैसा है, तब तक तो कितना कुछ बदल चुका होगा, आपको पता ही ना लगना। हमारी जैसी संगत जितना आपको सही बताएगी, उससे ज्यादा आपको कंफ्यूज कर देगी। तो मेरी प्रार्थना यही है कि गुरु से जुड़ो, डायरेक्ट जुड़ो। गुरु को समझने से ज्यादा
गुरु को प्यार कर लो, फॉल इन लव, दिल से जुड़ जाओ, भूल जाओ सब कुछ, और मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ही नोज एवरीथिंग। गुरु शिव है। गुरु, जैसे शिव जी ने कहा ना, गुरु हर समय आपका ध्यान करते हैं। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। हम लोग म्यूनिक के एयरपोर्ट पे थे, बेटी के पास से होके आ रहे थे, और आंटी ने मुझसे कहा, या मैंने आंटी से कहा, कि तूने कभी सोचा था एक दिन ऐसा आएगा हम अपनी बेटी के पास घूमने आएंगे और हम ये दिन भी हमें देखने को मिलेंगे, कैसे हम कालका जी से गुरु जी के पास आए थे और महाराज ने हमें बिना मांगे हुए कहां पहुंचा दिया। तो आंटी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा, और आज जिस हाल में हूं ऐसे हाल में भी कभी रहूंगा नहीं सोचा था। उसी वक्त जब हम ये बात कर रहे थे, महाराज की सॉलिड फ्रेग्रेंस हमारे चारों तरफ आ गई। हमने सोचा एयरपोर्ट पे है, कोई परफ्यूम की शॉप तो नहीं है साइड में। दाएं बाएं देखा, कोई नहीं था। एंड देन वी टुक इट एज गुरुजी's assurance and indication कि बच्चों, ये तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है ये मैं कर रहा हूं, और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तूने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। आपने कभी सोचा कि कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ रथ पे भी बैठ सकते थे? उन्होंने कहा, मैं तेरा सारथी बनूंगा। यानी आपका गुरु, आपका ईश्वर आपके लिए आपका रथ चला सकता है, एक तरीके से आपका सेवक बन सकता है, क्योंकि सारथी तो महारथी के नीचे काम करता है। लेकिन अपनी संगत से प्यार इतना करते हैं कि आपके लिए वो आपके लिए कुछ भी बन सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें बनने तो दें। और ये तब तक नहीं होना जब तक आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ नहीं देते। और फिर वो शब्द जिससे मैं कंक्लूड करूंगा कि, और ये शब्द सारे जो महाराज ने सुनवाए वे ऐसे ही नहीं थे। एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाइया ढेरिया। खाली प्यार करना काफी नहीं है, भरोसा करना काफी नहीं है, अकेले गुरु पे भरोसा करना जरूरी है। मल्टीपल नहीं। अगर आप गुरु आपकी लाइफ में एक ऑप्शन है, then don't blame Guru if you are also an option in his planning. Leave no option, because गुरु को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसका कुछ नहीं किया तो इसका कुछ नहीं होना, क्योंकि ये मैं करूंगा नहीं और ये और किसी दरवाजे पे जाके मत्था टिकेगा नहीं। So just have one and the only दरवाजा, दर, चरण जिसपे आपको टिके रहना है। एक सवाल और मैं आपसे करके और आज का सत्संग यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आंटी, गुरु से इतना प्यार हो जाए कि अगर आपको ऑप्शन हो कि आपकी जिंदगी में सारे सुख हो जाएंगे मगर गुरु नहीं रहेंगे, इन कंपैरिजन की आपकी जिंदगी में तकलीफ तो हो मगर गुरु साथ हो, तो आप बोलो मुझे गुरु के साथ तकलीफ मंजूर है, मुझे बिना गुरु का सुख नहीं चाहिए। आपको अच्छे बुरे में फर्क ना लगे, आपको यश में अपमान में फर्क ना लगे,
आपको किसी भी तरीके की चीजें विचलित ना करें। आप अपने गुरु के चरण पकड़ के मस्त रहें, तो आप गुरु के, गुरु आपके, और फिर आपको कुछ सोचने, कहने, सुनने, करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की प्रोसेस से आप बहुत दूर रहेंगे और फिर भी गुरु आपके रहेंगे। सोनिया आंटी, इसके साथ में आज महाराज से आज्ञा लूं। थैंक यू सो मच, टिल वी मीट अगेन। अनम्यूट कर लीजिए आंटी आप। जय गुरु जी अंकल। अंकल कैन यू हियर मी? यस। अच्छा, एक्चुअली में मैं सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी बहुत सारे और पेंडिंग भी हैं संगत के। लाइक मैं सॉरी, आपको आई थिंक भेजना ही भूल गई थी। तो आप पहले तो दोबारा से बताएं आप कब आ रहे हो हमारे पास, है ना? ऐसे नहीं जाने देंगे आज हम सारे आपको। पहले प्रॉमिस करो पक्के वाला। आंटी जी, मैं कहीं गया ही नहीं, तो नहीं वापस अंकल, आने पता की है वो बात है। बात तो बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी ना टाइम निकाला करो थोड़ा सा ना, ज्यादा वाला, जी आंटी। है ना? और लाइक जो मेन प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ आप उसके लिए थोड़ा सा संगत को, हालांकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है सारा, लेकिन फिर भी हमारे मतलब जो मैं फील करती हूँ ना इन दिनों कि होता क्या है कि लाइक हर बंदा अपने आप में सोचता है कि शायद मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है और मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, तो अपने हिसाब से ना कोई भी मैसेजेस बनाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो गुरु जी की लैंग्वेज में बनाते हैं, लाइक कि जैसे गुरु जी पंजाबी बोलते हैं, तो वो ऐसा कुछ बनाते हैं कि संगत को लगता है कि ये तो गुरु जी का मैसेज है। और मेरे को लगता है कि बहुत हद तक हम उस तरीके से ना संगत को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक कि संगत परेशान होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आंटी ने बोला कि आंटी अमृत वर्षा क्या होती है, और सब बताते हैं हमारे घर में होती है, तो फिर हमारे घर में क्यों नहीं होती? इट मीन्स क्या हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, या फिर लाइक कि गुरुजी जिनसे प्यार करते हैं, गुरुजी, सारी आंटियां बताती हैं कि गुरुजी तो हमसे बात करते हैं, मेरे से नहीं करते, तो क्या मतलब एंड कि गुरुजी, आप कहते हो कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाए तो फिर गुरुजी को हमसे भी बात करनी चाहिए, हमारा रिप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारे, आपको पता ही है, क्वेश्चनरी तो बहुत सारी है। सो ये है कि मतलब ना प्लीज थोड़ा सा ये जरूर गाइड करें कि जो हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी मैसेजेस आगे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं ना, वो जो चेन बनती है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सब कुछ खराब कर देती है, लाइक मतलब वो बिल्कुल हम अपने रास्ते से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? जी आंटी, मैं इस पे कुछ बात कहना चाहूंगा। जी ये सारे के सारे जो मैसेज भेज रहे हैं ना, बिल्कुल। ये सब के सब इसलिए भेज रहे हैं, इन्हें लगता है ये मैसेज भेजने से गुरुजी खुश हो जाएंगे और इनका कल्याण कर देंगे। कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं तो भागते भूत की लंगोटी, बिल्कुल। समथिंग दे विल गेट आउट ऑफ दिस। लेकिन आंटी, आज इतने साल हो गए इस जन्म में महाराज के चरणों से जुड़े हुए, मैंने एक मैसेज नहीं भेजा इस तरह की का। दी ओनली मैसेज आई सेंड इसकी सत्संग कब है, कहाँ है, कैसे है। बिल्कुल। या मैं अनरिलेटेड सत्संग से, संगत से अनरिलेटेड मैसेज शेयर करता हूं जिसमें मुझे लगता है कि ये नॉलेज है, विच इज सोशल मीडिया का एक बढ़िया सा यूज। आंटी, एक बार इंडिया टुडे में महाराज के स्वरूप के साथ में कुछ छपा, तो मुझे याद है, अब मुझे याद नहीं किस अंकल ने खड़े होकर ये अनाउंसमेंट किया, महाराज आसन पे थे, कि ये वाली इंडिया टुडे संगत नहीं पड़ेगी, नहीं दिखेगी। और आंटी, हमने नहीं देखी, नहीं पढ़ी, और मुझे याद है हम में से किसी ने नहीं। एक चीज तो, पढ़ने में क्या बुराई थी, लेकिन गुरुजी को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, और अगर तब नहीं था तो आज भी नहीं है।
बिल्कुल। सत्संग तो फेस टू फेस होता है, भले ही वो जूम के थ्रू हो, लेकिन फेस टू फेस होना चाहिए। ये जो ये जो मैकडोनल्ड के बर्गर की तरह से जो ये सत्संग सर्व हो जाता है ना, फास्ट फूड की तरह से, मेरे हिसाब से ये महाराज की ब्लेसिंग तो देखो, चाहे आप जैसे कहते हैं ना, वो वाल्मीकि को कह दिया था कि राम राम नहीं कहा जाता तो मरा मरा कह ले, उसमें भी थोड़ी देर में राम राम निकल आएगा। बिल्कुल, देखो गुरु बिल्कुल। का नाम तो आप कैसे भी ले लो, कुछ ना कुछ तो देके जाएगा, बिकॉज नाम ही ऐसा है। लेकिन गोइंग अगेंस्ट हिज टीचिंग इज नॉट राइट। और जो उन्होंने तब नहीं एक्सेप्ट किया, वो आज क्यों करेंगे? लेकिन वही वाली बात है आंटी, कि जो जिस तरह से अपनी पूजा उपासना करते रहे हैं, वो उसी तरह की उपासना में गुरु जी को भी बीच में डाल लेते हैं। अंकल वो ठीक है, बट एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि जो नॉन बिलीवर्स है ना, उनके लिए वो एक हास्य का विषय बन जाता है। कई बार ऐसी जो चीजें हम सर्कुलेट करते हैं, मीन्स कि सपोज अगर एक पल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपको कोई मैसेज भेज दिया, मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे लाइक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स नहीं होती या अमृत वर्षा नहीं होती, बट फिर भी ये सबके लिए अनबिलीवेबल थिंग्स है। एंड उसके अंदर जो इतना एक्सट्रीम में जा करके जो भी हम लोग मैसेजेस सर्कुलेट कर देते हैं, लाइक किसी ने अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ था ये सब चीजें, तो उसमें क्या होता है कि कई मैसेजेस और ऐसे, और क्योंकि जितने भी गुरुजी के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें सारी की सारी संगत सच में गुरुजी की डिवोटी तो है नहीं, तो ये बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो मेरे को लगता है कि शायद हम मेरे कहने से तो नहीं सुनते, हो सकता है आपके समझाने आंटी से ही समझ में आंटी आए। आप, मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जी। और पूरी संगत अपने तरीके से अपने निर्णय ले। मैं तो आंटी इस तरह के मैसेज आते हैं तो मैं 90% 100 तो पढ़ता नहीं, और अगर जरा भी मुझे लग जाता है ये क्या है, तो मैं उसको आगे को कर देता हूँ। और जो मुझे लगता है ये रिपीटेडली मैसेज भेजते हैं, मैं उनको आंटी ब्लॉक कर देता हूँ। किसी के, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि ये मैसेज झूठा होगा। मैं कोई बिल्कुल, जज नहीं हूं, बिल्कुल, लेकिन मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो प्रोसेस मेरी समझ में नहीं आती। आंटी ये जो देखो, गुरु कुछ भी कर सकते हैं, अमृत वर्षा तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल, वो आपके ड्रीम में भी आ सकते हैं, वो आपके सामने साक्षात आके बैठ सकते हैं, वो वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब करेंगे तो मुझे पता चलेगा, और मैं उसको गूंगे के फल की तरह से एंजॉय तो करूंगा, लेकिन सत्संग वही करूंगा जो गुरु की महिमा को ट्रूली रिप्रेजेंट करे। मिरेकल में और ब्लेसिंग में आंटी बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर में रोज अमृत वर्षा हो, पर आपकी लाइफ सेट नहीं हो, ब्लेसिंग नहीं मिली, और मिरेकल रोज होते रहे, आपको क्या चाहिएगा? मैं चाहता हूं ब्लेसिंग, हमारी संगत की जिंदगी में ब्लेसिंग आए, मिरेकल्स की जरूरत नहीं। मिरेकल तो बिल्कुल, वो सारी दुनिया के मालिक हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं आंटी, और किए हैं। वो जान बख्श देते हैं, जिंदगी बढ़ा सकते हैं, मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। तो लेकिन गुरु के लिए कोई मिरेकल नहीं है। लेकिन ये सोचना कि अगर किसी के घर में कुछ हुआ है और आप सारे के सारे वहां जाके लाइन लगा के ब्लेसिंग लेके अपने घर में उसको कर लेंगे, नहीं होना। किसी का खाया हुआ खाना आपके पेट में नहीं जाता आंटी, आपके पेट में वो जाएगा जो आप खाओगे, और आप वो खाओगे जो गुरु आपको देगा खाने के लिए। तो अपने टर्न की वेट करो, पेशेंटली वेट करो, छीना झपटी की जरूरत नहीं है। गुरु आपको जब जिस समय जैसे चाहेंगे देंगे, वो करें। और इन चीजों को मत बढ़ाओ, हर वो चीज जो गुरु की बेसिक टीचिंग के खिलाफ है। एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग ऑफ आवर गुरु, पाखंड, अंधविश्वास, प्रोसेस, क्यों? मैं उसका हिस्सा नहीं बनता, पर मैं आंटी किसी को गलत नहीं कहता। सब अपने तरीके से सही होंगे, ये मेरा तरीका है। और मेरा तरीका ये है कि मुझे किसी भी तरीके की इस प्रोसेस में नहीं पड़ना, तो नहीं।
सबका अपना अपना हिसाब है, अपनी अपनी समझ है। वही वाली बात है, आप डायरेक्ट गुरु से जुड़ोगे या इंजन से बोगी जुड़ना चाहते हो, किसी बोगी के पीछे लगना चाहते हो? आप गुरु की संगत का हिस्सा बनना चाहते हो या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? गतानुगति को लोग है, एक बहुत पहले पढ़ा था चौथी पांचवी क्लास के उसमें कि अक्सर लोग वो करते हैं जो कोई दूसरा कर रहा है, इसे अंधविश्वास कहते हैं। आप वो करो जो आप गुरु से डायरेक्ट समझो, उसे विश्वास कहते हैं। नकल मत करो, अपनी बात मानो, जो गुरु आपको समझाए वो समझो, ये बात है। बाकी आंटी हम कुछ भी कह लें, सही लेकिन बात है। गुरु की जो लीगेसी है, गुरु की महिमा है, उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन आंटी महाराज की बात खत्म नहीं होने वाली है। हरि अनंत सही हरि बात कथा अनंता। गुरु जी की महिमा, हमारी तो औकात क्या है। शिव जी की महिमा तो ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, विष्णु जी नहीं कर पाए। महाराज से जुड़े रहे आंटी, आप सब संगत जी। गुरु से अगर प्यार कर सकते तो प्यार करें, किसी तरीके के पाखंड में मत पड़े, किस तरह की प्रोसेस में मत पड़े, क्योंकि प्रोसेस की फिर अपनी एक एक तौर तरीके होते हैं जो नहीं फॉलो करने से फिर वो गड़बड़ हो जाती है। इससे अच्छा है चक्कर में मत पड़ो। गुरु नहीं चाहते, वो चाहते आप उनसे बस जुड़ जाओ, और वो भी वही जोड़ लेंगे। आप खाली तैयार रहो, बी रेडी, कि जब गुरु की कॉल आए तो आप तैयार हो। इतनी बात है। आज के लिए आंटी यहाँ पे महाराज से आज्ञा लेते, और ठीक है अंकल। मैं माफी चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ कहने में नहीं अंकल, बस ठीक ना थैंक यू लगे। सो मच। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम निकालते रहिएगा। सो जी जय जरूर, गुरु जी। थैंक जय यू गुरु सो जी मच आंटी जी। अंकल। और वो संगत के काफी मैसेजेस हैं, आई थिंक आपके तो टच में होंगे, जो और भी ओल्ड संगत के अंकल आंटीज हो, लाइक विप्पी अंकल को सब सुनना चाहते हैं। सो इफ इज इट पॉसिबल तो आप प्लीज आंटी ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा टच में नहीं रहता, लेकिन अच्छा मैं जो आपको बता देंगे उनके कॉन्टेक्ट्स, मैं उनको आपको रेफर कर दूंगा। अंकल, मैं तो आप ही को जानती हूँ, बस आप अपने आप देखेगा जो आपको बेटर लगे। ठीक है जी आंटी, अंकल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी जी। जय गुरु जी आंटी जी।